یکسن معزز علماء کرام اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں مسلمانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم تعالی و تقدس اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ تمام حضرات شور و غل نہ کریں، سکون سے بیٹھیں۔ یہ ادب والی محفل ہے، ادب کا خیال رکھا جائے، اور میرے ملت کے نوجوان جو سامنے کھڑے ہیں اگر اسے جگہ نظر آ رہی ہو تو برائے مہربانی تھوڑی سی اپنے آپ کو کشت دیں اور آگے بڑھ کر جگہ لے کر بیٹھ جائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ اس لیے کہ میں نے بچپن میں بزرگوں سے سنا تھا کہ انڈے اگر مرغی کے اندر رہتے ہیں تبھی اس میں بچے آتے ہیں، انڈے اگر مرغی کے اندر ہی رہے تبھی اس انڈے سے جی تو آپ لوگ بھی جلسے میں آئے ہیں، جب اپنے بستروں کو چھوڑ کر تو جگہ لے کر بیٹھنے میں کیا برائی ہے؟ تو برائے مہربانی آپ لوگ آئیں اور جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ ہماری ماں بہنوں سے پرخلوص گزارش ہے کہ تھوڑا کشٹ دیں، آگے آ جائیں آپ لوگ، اس لیے کہ پیچھے سڑک پر بیٹھی ہیں، آپ لوگ تھوڑا اور قریب آ جائیے۔ اور حضرات محترم، میں خصوصی توجہ چاہوں گا، کیا یہ سب سے پہلے نبی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں اپنی غلاموں کا غلامیوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نوری الانوار وسید الاسرار وسید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ نے شام سے لے کے اب تک سن ہی رہے ہیں، اور کبھی اردو میں سنتے ہیں، کبھی بنگلہ زبان میں جو سب سے میٹھی زبان کہلاتی ہے۔ تو بہرحال میں صرف اردو زبان ہی بولتا ہوں، زیادہ تر بنگالی میں بھی ہوں، لیکن بنگالی زبان بولنے کا عادی ضرورت کے مطابق ہی استعمال کر پاتا ہوں، ورنہ بول ہی نہیں پاتے۔ تو بہرحال حضرات محترم، میں نے قرآن مقدسہ کی بہت ہی مشہور آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اسی کی ضمن میں میں تمام خواتین اسلام کے تعلق سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ اور آج خواجہ غریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے، خواجہ غریب نواز کی شان میں بس ایک بات بتاؤں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راجستھان کی سرزمین پر تشریف لائے تو خواجہ معین الدین چشتی ایک مسجد کی تعمیری کام کروا رہے تھے، جن کا کام دن میں بھی ہوتا تھا، رات میں بھی کام کروایا کرتے تھے۔ تو رات میں کام کرانے کے لیے خواجہ غریب نواز نے اپنے غلاموں کو کہا، جاؤ بازار سے مٹی تیل خرید کر لاؤ، اس لیے کہ جب تک مٹی تیل نہ لاؤ گے رات میں کیسے کام چلے گا، مسجد کی کام رک جائے گی۔ برائے مہربانی اے میرے خادموں، جاؤ بازار سے مٹی تیل خرید کر لاؤ۔ خواجہ صاحب کے خدام، خواجہ صاحب کے غلام بازار پر جاتے ہیں، مٹی تیل کے لیے دکان پر پہنچتے ہیں۔ دکاندار کہتا ہے، اے خواجہ معین الدین چشتی کے غلاموں، راجہ پرتھوی راج نے یہ قانون لگایا ہے کہ تم لوگوں کو کوئی مٹی تیل نہ دے، میں نہیں دے سکتا، میں مٹی تیل تمہیں نہیں دے سکتا۔
अब वो गुलाम थे, फिर दूसरी दुकान पर जाते हैं, देखा कि वो दुकानदार भी वही बात कह रहा है जो उन्होंने कहा, मिट्टी तेल देने को कोई तैयार नहीं। अब सारे गुलाम ख्वाजा साहब के पास आते हैं और अर्ज गुजार होते हैं, ए हुजूर, मार्केट वालों ने तो हड़ताल कर दिया है, मार्केट वाले तो कसम खा लिए हैं, मार्केट के लोग राजा पृथ्वीराज चौहान से इतना खौफ ज़दा है कि कोई मिट्टी तेल देने को तैयार नहीं है। अब रात में मस्जिद का काम चले तो चले कैसे? ख्वाजा साहब कहते हैं, ए मेरे गुलामों, घबराओ नहीं, अल्लाह पे भरोसा करो और जाओ अना सागर का पानी लाओ और चिराग में डालो। आना सागर का पानी चिराग में डालो, मिट्टी तेल से ज्यादा काम करो। दुनिया ने देखा चिराग में तेल के बजाय पानी, लेकिन रोशनी सबसे ज्यादा। तो ये ख्वाजा का करम है। और आपको एक बात बताऊं, आज हिंदुस्तान के हालात से हमें हरगिज़ नहीं डरना चाहिए, इसलिए कि जिस ख्वाजा ने ऊंट को बिठाया तो कोई उठा ना सका। हम मुसलमानों को ख्वाजा ने बताया है, हमें कौन उठा सकता है? हमें कौन गुजर कर सकता है? और आज मेरे मुसलमानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौर से सुनो, आज कर्नाटका की सरजमी पे क्या माहौल हो रहा है। वहाँ पर हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। एक लड़की जिसका नाम मुस्कान खान है, इतनी शेरनी अंदाज से तमाम लोगों को बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए कितने दुश्मनों को ललकार रही थी। आखिर ये जुर्रत और हिम्मत हो, ये बहादुरी कहाँ से आई? मेरे मिल्लत के नौजवानों, निगाहें अगर पाक हो, निगाहें अगर पाक हो, दिल अगर साफ हो, तो इंसान दुनिया में भी नहीं डरता है और आखिरत की मंजिलों में भी नहीं डरता है। लेकिन आज हम अपने घरों पे डरते हैं, हम अपने गांव में डरते हैं, हम एक दूसरे को देख कर डरा करते हैं। मैं उस तरफ चलता हूँ, कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर आयत करीमा पढ़ी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, ए लोगों, तुम अपने रब के नाम की पाकी बयान करो जो सबसे आला है। अब जब ये आया मुक़द्दसा नाज़िल हुई तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहने लगे कि मेरे गुलामों, इसी आयत को तुम अपने सजदे की रौनक बनाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे गुलामों, इसी आयत को तुम अपने सजदे की रौनक बना लो। इसी आयत से महफूज किया गया है जो आज हम नमाज में पढ़ा करते हैं, सुभान रब्बियल आला। आप में से कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह ही बेहतर जाने। अगर हाथ उठाने को उनको पता नहीं, कुछ लोग ज्यादा भी उठाते जो ना भी पढ़ते हो। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, नमाज बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक बात और बताऊं जो शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे जितनी मस्जिदें हैं पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी मस्जिदें नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिदें हैं। कितनी मस्जिदें? 3 लाख। और इतने मस्जिद होने के बावजूद, इतने मुसलमान होने के बावजूद नमाजी सिर्फ 3% है। नमाजी सिर्फ 3% है। अब बताइए, मुसलमानों पे जुल्म ना तो किस पे हो? मुसलमान नाम के मुसलमान बनकर रह गए, काम के तो थे ही नहीं। कुछ दिन पहले, 1 साल गालिबन हो गए, दिल्ली का, मुंबई का वाकया है कि एक बाइक में 2 नौजवान मार्केट को जा रहा था, पुलिस वाले रोका। तो लॉकडाउन का वक्त है, एक गाड़ी, एक बाइक में 2 आदमी क्यों, कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहने लगे, पुलिस से कहता है तो मैं बाजार जा रहा हूँ, लॉकडाउन में तो कुछ नरमी आई है, इसलिए मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ ताकि कुछ कपड़े खरीद लाऊं। तो कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो एक ने कहा रहमान, एक ने कहा आसिफ। तो कहता है ठीक है, तुम मुसलमान हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तुम मार्केट जा रहे हो कपड़े लेने,
तो पुलिस था थोड़ा समझदार और थोड़ा रहमदिल आदमी था। तो वो पुलिस कहता है कि बेटा ये बता पहले कि मुसलमान जो दिन में 1 बजे नमाज पढ़ता है उस नमाज का नाम क्या है? तो लड़के थे, नौजवान समझदार थे, उन्होंने कहा उसका नाम है ज़ोहर। सुभान अल्लाह। तो और आगे पूछा पुलिस की बेटा ये बताओ नमाज तूने पढ़ी? तो वो दोनों सर झुकाए हुए कहता है हमने तो नहीं पढ़ी। अब मौका मिला पुलिस को कि क्या रमजान का महीना चल रहा है बेटे तुम रोजे से हो? आगे से कहता है सर झुका के सर मैं रोजे से भी नहीं। ये हाल है हमारे नौजवानों का कि सर उठा के हम बोल नहीं सकते कि हम रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। आज कुछ लड़के ही होंगे, कुछ नौजवान ही नजर आते होंगे जो रमजान में रोजे रखते हैं। तो आज हम मुसलमान सिर्फ नाम का बनकर रह गए, काम के तो नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करो जो सबसे आला है। और हम इसी तस्बीह को नमाज में पढ़ते हैं। नमाजी जितने भी हजरात हैं मैं उससे खास तवज्जो चाहूँगा कि आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सजदे करते हैं और सजदे में जाकर कहते हैं या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। क्या कहते हैं हजरत? या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। अब बताइए नमाज जब हम पढ़ते हैं और जब हमारा सर सजदे में होता है और हम ज़बान से कहते हैं कि या अल्लाह तू सबसे बड़ा है तो हमारी पोजीशन क्या होती है? हमारी पोजीशन क्या होती है? आपको बताए कि इंसान के जिस्म के अंदर जितनी भी अशरफ आज़ाएं हैं उसे अल्लाह ने सर पे रखा है। सुभान अल्लाह। आप हट्टे गट्टे मुस्टंडे बने रहें, अगर आपके पास आँख है लेकिन दिखाई ना देता हो तो लोग दुनिया वाले उसे अंधा कहता है। इतनी कुव्वत, इतनी पावरफुल चीज को अल्लाह ने सर पे रखा है। हमारी काने ये भी अल्लाह ने सर पे दिया है। हमारी जबान जिससे हम नाच पढ़ा करते हैं, जिससे कुरान पढ़ते हैं, जिससे बड़ों को सलाम देते हैं, जिससे छोटों के साथ अदब से बात करते हैं, उस जबान को भी अल्लाह ने सर पे रखा है। और जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा सर मालिक के दर पे होता है और जबान पे होता है या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। तब बताइए जो सच्चा नमाजी हो, जो पक्का नमाजी हो, जो सजदे की लुत्फ को लेना चाहता हो, जिसके अंदर सजदे की रौनक आती हो, अब बताइए नमाज में सर को झुका रहा है, अपने सर को जमीन पे रगड़ता है, नाभि को जमीन पे रगड़ते हुए कहता है या अल्लाह तू बड़ा है। और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से जब हम निकले तो 4 के दरमियान अपने आप को बड़ा समझते हैं। नमाज में सर को जमीन पे रगड़ते हुए कहते हैं या अल्लाह तू बड़ा। और नमाज के बाद सलाम जैसे ही फेरा मस्जिद के बाहर निकले हम बड़े हैं। अब बताइए नमाज में जो आपने जो सजदा किया उसका लुत्फ मिला? हम उसके लुत्फ ले पाए? हम नमाज में कहे सर को जमीन पे रगड़ते हुए कि या अल्लाह तू बड़ा है और 4 लोगों के दरमियान अपने आप को हमेशा हम बड़ा समझते हैं। ये कहाँ की बात है? ये किधर से आया? बल्कि आपको बताऊं पहले के लोग इतना डरा करते थे, इतना डरते थे। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े आदिल इंसान थे। किसी ने कहा जब असर की नमाज पढ़कर हजरत सैयदना अबू बकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से जब बाहर निकलते हैं तो कुछ लोगों ने कहा ये जो हजरत सैयदना उमर है हमेशा ये इंसाफ के साथ काम करता है, ये बहुत बड़ा आदिल इंसान है, कभी बेइंसाफ ही नहीं करता, हमेशा इंसाफ से काम लेता है। इतना सुनना था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर को आते हैं, नमाज इशा पढ़ते हैं और रात के पिछले पर बिस्तर ख्वाब में रोने लगते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी की आँख खुलती है, अपने बेटे को उठाते हैं, ए अब्दुल्ला जा जरा पता तो करके देख तेरे बाबा जान को किस चीज ने तकलीफ दी है जो रो रहे हैं, जा
जा तो अपने बाबा से पूछ कर आ। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत उमर की बीवी सब मिलकर हजरत उमर के सामने जाते हैं और अर्ज गुजार होते हैं, ए मेरे वालिद मोहतरम, आप बताएं तो सही, आपको किस चीज ने रुलाया है और किस चीज ने आपको तकलीफ दी है जिसके बिना पर आप रो रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए बेटा, ए मेरी मोहतरमा, मुझे किसी चीज ने तकलीफ ना दी, मुझे किसी चीज ने रुलाया नहीं है। एक बात है जिसको सोच कर मैं रो रहा हूँ। मस्जिद से जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, हमेशा इंसाफ से काम लेता है। मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या मैं घर में भी इंसाफ के साथ जिंदगी बसर करता हूँ। दिल में ख्याल आता, इस वजह से मैं रो रहा हूँ कि क्या मैं घर में भी इंसाफ करता हूँ कि किस तरह बेटे से बात करनी चाहिए, किस तरह की जितना बेटे का हक है तो मैं वो देता हूँ, कितनी मेरी बीवी का मुझ पे हक है, कितनी मेरी बेटी का मुझ पे हक है, क्या मैं हक के साथ घर पे भी चलता हूँ। इतना कहना था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी बोल पड़ी, ए मेरे शौहर नामदार, ए मेरे अबू उमर फारूक, मैं आपसे नाराज हूँ। सुनिएगा, ए मेरे शौहर, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे खफा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो अतार रोने लगे और हाथ को जोड़कर खड़े हो गए, हाथ छोड़कर खड़े हो गए। कहा बीवी के सामने। सुनिएगा, ये छोटे मोटे लोगों की बात नहीं बता रहा, बहुत बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कह दिया, ए उमर तू जन्नती है। ये जन्नती लोग की बात है। बीवी के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए, ए मेरी मोहतरमा, अगर मुझसे तू नाराज है खुदा के वास्ते माफ कर दे। तो हजरत उमर की बीवी कहती है, ए मेरे शौहर, मैं इस तरह से आपको माफ नहीं करूंगी। अगर आपको माफी चाहिए, अगर आपको माफी चाहिए तो एक वादा करना पड़ेगा। हजरत उमर कहते हैं, मेरी मोहतरमा जल्दी बता क्या वादा है, क्या बात है, तू बता तो सही। हजरत उमर की बीवी कहती है, वादा ये करना है कि अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में जब आपको जन्नत जाने का हुक्म दे दे तो आप मेरे बगैर जन्नत नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, आप मेरे बगैर जन्नत नहीं जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए मेरी मोहतरमा, अगर अल्लाह का करम हुआ, अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत जाने का हुक्म दिया तो यकीन कर लो, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुझे छोड़कर मैं जन्नत नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये रिवायत इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारे घरों में क्या है, गलती हमारी क्यों ना हो, गलती हमारी क्यों ना हो। बीवी को हम गलत ठहराते जी, हम भले जितना ही गुनाह क्यों ना कर ले, हम जितना भी ज्यादती क्यों ना कर ले, जिम्मेदार बीवी को ठहराते हैं जी। और एक उमर जैसे बंदे हैं जो बीवी ने कहा मैं नाराज हूँ तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वाह, अब बताइए इस्लाम को ये दर्द देता है, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों में बीवी पर हाथ उठाते हैं, बीवी को मारते हैं, बीवी को पीटते हैं। ये कहाँ का है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम लि अहली, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। और आगे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खैरुकुम लि अहली, जा मेरे घर जाके पता कर ले, इस वक्त मेरे घर में मेरी 9 बीवियां हैं, कोई भी शिकायत नहीं कर सकती। वाह, सब बीवियां खुश है। तब बताइए अच्छे लोग तो हम उसी वक्त बनेंगे जब अपने आप को घर में अच्छे से रखें, हम अपने बीवी के निगाह में अच्छे बने, अपने औलाद की निगाह में हम अच्छे बने। जब तक घर वालों की निगाह में आप अच्छे नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपको अच्छा नहीं। और आज
ہماری ماں بہنوں کا بھی عجیب حال ہے، عجیب حال ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں خامخواہ سڑکوں پہ نظر آتی ہے زیادہ، بغیر ضرورت کے سڑکوں پہ۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت، جو لڑکیاں بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو قدم قدم پر اس کے شوہر کے نام پر ایک جہنم میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تھوڑا شانتی سے بیٹھے، شانتی شانتی۔ تمہیں لوگ بولے تو ہم کہاں بولیں گے بھیا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر توجہ سے سنیے گا، بہت ضروری بات بتا۔ بے ضرورت اگر عورت باہر نکلتی ہے سڑکوں پہ اور ان کا شوہر خفا نہ ہو، یعنی غصہ نہ کرے کہ تم کیوں باہر آئی، تو اس عورت کے ایک قدم نکالنے کی وجہ سے اس کے شوہر کے نام سے جہنم میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ شادی شدہ ہو۔ اب اگر کنواری ہو تو ایک محل جہنم میں اس کے باپ کے لیے بنتا ہے، ایک محل اس کے بھائی کے لیے بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ اور آج ہماری ماں بہنیں تو بے ضرورت چلتی ہیں، ضرورت ہی نہیں، پھر بھی سڑکوں پہ۔ آپ ماں بہنوں کو کیا دوست دیں؟ ہم ہی کہیں جاتے ہیں تو بیویوں کو لے کر، بغیر بیوی کے کپڑا نہیں خریدے گی، بغیر بیوی کو لے جائے میری بیوی کپڑا ہی پسند نہ کرے، فائدہ کیا ہے؟ ارے بیوی تمہاری پہناؤ گے، تم دیکھو گے، تم اپنی پسند کا پہناؤ گا، بیوی کے مرضی پہ کیوں مارکیٹ لے جانا؟ گنہگار بنتے ہیں جب اپنے بیوی کے کپڑے کے لیے اسے مارکیٹ لے جاتے ہیں۔ اور آج ہماری ماں بہنیں مزاروں پر بہت زیادہ جایا کرتی ہے، مزاروں پر بہت زیادہ بھیڑ، عورتوں کا عورتیں بھیڑ لگایا کرتی ہے۔ شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے، اور عورت کو مزار پہ جانے سے سختی کے ساتھ اسلام روکتا ہے۔ اے میری اسلام کی شہزادی، تم مزار پہ نہیں جا سکتی، مزار پہ تم نہیں جا سکتی، لیکن آج چادر کے نام سے، آج شیرنی کے نام سے، آج منت کے نام سے مزاروں پہ میلہ نظر آتا ہے۔ اب بتائیے، اللہ کا ولی جو بنا ہے، مثال کے طور پہ ہم جلکی شریف کو لے لیتے ہیں، جلکی میں اللہ کا ولی ہے، جی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی گوارا کرتا ہے کہ میرے مزار پہ عورت ہی آئے؟ کبھی نہیں پسند کر سکتا۔ آپ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسے منت کے بہانے مزاروں پہ نہ جائیں۔ منت آپ نے مانی ہے، بیٹے کو بھیج دیں، شوہروں کو بھیج دیں، شوہر کو بھیجے، بیٹوں کو بھیجے، آپ کیوں جائیں؟ ضرورت تو نہیں ہے، اپنے آپ کو ضرورت کے مطابق باہر نکالیں۔ آپ اپنے آپ کو ضرورت کے مطابق ہی اپنے آپ کو گھر سے نکالیں، جتنی اندر ہو اتنی ہی اندر رہیں۔ ایک حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک عورت جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ صرف ایک بات بتائیں کہ کتنی کیا پڑھنی ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنی قرآنیں پڑھنی ہیں، کتنی تسبیحیں پڑھنی ہیں، جس سے میں اللہ کا قریب حاصل کروں، جس سے میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح مجھے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے اسلام کی شہزادی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کرنا کچھ نہیں ہے، جتنا زیادہ تم گھر کے اندر رہو گی اتنا زیادہ اللہ کے قریب چلی جاؤ گی۔ آج ہم گھر سے باہر آ گئے، اللہ کے قریب کیسے جائے؟ اللہ کے قریب جا کیسے سکتے ہیں؟ ہم تو سڑکوں پہ آ گئے، ہم سڑکوں پہ، ہمارا معاشرہ سڑکوں پہ۔ آج ہمارے بڑے بزرگوں کو بچوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں،
तो बच्चे कहाँ सीखे, बच्चे कहाँ जाकर अदब सीखे। आज हमारे बुजुर्ग अपने पोते और पोतियां को ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, शर्म नहीं आती। 60-70 साल के हो गए, पोती को गाली दे रहे हैं, पोते को गाली देना है, शर्म नहीं आती। आप आज पोती को पोती समझ के गाली दे रहे हैं, तो अभी बच्ची है। आप जो सिखाएंगे, जो बोलेंगे वही सीखेगी। आपको ना बोल सकी अगर वो, तो ससुराल जाकर अपने ससुर को गाली देगी, अपने शौहर को गाली देगी, अपने गुतिया को गाली देगी, अपने रिश्तेदारों को गाली देगी, और आप पे पंचायत होगा, फिर आप 10 को लेकर पहुंचेंगे। सिखाया आपने गाली, अब वो गाली देनी गलती क्या है? आपने तो पहले ही नशा घोल दिया है, आपने पहले ही उसके नसों में, उसके दिमागों में गलत गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर करके उसके दिमाग को पहले ही आपने पूर कर दिया है। तो आप जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल होगा, ये हर कोई डालेगा। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह का कुर्ब चाहती हो मेरी माओ तो तुम घर के अंदर रहो, और मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर दुनिया में सबसे बेहतर इंसान बनना है तो अपने घर वालों के लिए बेहतर बन जाओ, ताकि घर वाले बोले ये मेरा शौहर है, बेटी बताए फख्र के साथ ये मेरा बाबा जान है, बेटे कहे ये मेरे वाली साहब है। आज बीवियां कभी तारीफ नहीं करती शौहरों का, कभी नहीं तारीफ कर सकती, हमेशा शौहरों के बारे में बुरा ही बोलती है। आप अच्छे बनेंगे तभी तो अच्छा बनेंगे। तो बहरहाल अल्लाह करीम रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है, सब हिस्से रब्बिकल आला, तुम अपने रब के नाम के पाकी बयान करो जो सबसे आला है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, इसलिए कि अल्लाह ने तुझे बनाया है और फिर तुझे सवारा है। आज हमें हाइट देता, जिस्म देता, तंदुरुस्ती देती, लेकिन अगर एक पैर छोटा होता, एक हाथ छोटा होता, एक आंख ना होती, एक कान काम ना करता, तो पूरी दुनिया हमें अपाहिज कहता। लेकिन अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती के साथ हमें सवारा है, तो हम संवरने का हक अदा करना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, जिसे हमको पढ़ना लाज़िम फर्ज है। नमाज न पढ़े आप सोचे कामयाब हो जाए, कभी नहीं होंगे। ज़ात मोहतरम अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी इतनी सी गुफ्तगू में जो भी गलतियाँ हुई हो, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, और जितनी सही हो बातें अल्लाह ताला मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर आप तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।